آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا جنوبی کوریا کا کامیاب دورہ جاری، بیرونی سرمایہ کاری کو یقینی بنانے صنعت کاروں سے کی گئی ملاقات۔ کسانوں کی قرض معافی اسکیم میں کئی خامیاں، BRS کنٹرول روم کو 75,000 شکایتیں موصول، پی سدرشن ریڈی نے کیا دعویٰ۔ کانگریس رکن اسمبلی ڈی ناگیندر پر پارک کے انہدام کا الزام، ہائیڈرا کی جانب سے کیس درج، مقدمے سے گھبرانے والا نہیں ہوں، ڈی ناگیندر کا بیان۔ مجلس اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں مصروف۔ وشاکھاپٹنم بیسیج پارک امپورٹمنٹ سینٹر میں آتش زدی کا حادثہ، لاکھوں روپے نقصان کا تخمینہ، متعلقہ پولیس نے کی ضابطے کی کارروائی۔ جوائنٹ کلکٹر رنگا ریڈی 8 لاکھ روپے رشوت حاصل کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار، ACB نے کی کارروائی۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ کرناٹک اسٹیٹ اردو اکیڈمی کے چیئرمین محمد علی قاضی نے ایک وفد کے ہمراہ تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی دفتر کا دورہ کیا اور چیئرمین اردو اکیڈمی سے ملاقات بھی کی۔ چیئرمین تلنگانہ اردو اکیڈمی طاہر بن حمدان نے اس وفد کا خیر مقدم کیا اور اکیڈمی کی جانب سے اردو زبان کے فروغ کے لیے کیے جا رہے اقدامات اور اکیڈمی کی اسکیمات سے وفد کو واقف کروایا۔ بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے چیئرمین کرناٹک اسٹیٹ اردو اکیڈمی نے بتایا کہ دونوں اکیڈمیاں تال میل کے ساتھ کام کریں گی تاکہ اردو زبان کی ترقی و ترویج اور اس کے فروغ کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس موقع پر سپرنٹینڈنٹ کرشنا کے علاوہ دیگر اسٹاف اراکین بھی موجود تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے کرناٹکا اردو اکیڈمی کے چیئرمین محمد علی قاضی صاحب کا، ان کی ٹیم کا اور رجسٹر صاحب کا میں استقبال کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہم سب مل کر یہ دعا کریں اس ملک میں، خصوصاً آج تلنگانہ ریاست میں حیدرآباد میں آپ کی موجودگی میں ہم اور آپ مل کر ایکسچینج آف ویوز اردو کے ترقی کے لیے جو ڈسکشن کریں 1-1.5 گھنٹے سے، مجھے امید ہے کہ اس آج پہلی بیٹھک میں ایک ایسی رائے مشورہ ہوا جس میں ساؤتھ کا اردو فیڈریشن قائم ہو اور اردو کی ترقی کے لیے ہم سب مل کر کام کریں۔ اور یہ بات آپ جو کہی، وہ بات ہماری حکومت میں ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہے، میں ہوں، اور ہمارے تفسیر اقبال صاحب جو سیکریٹری ہے، پرنسپل سیکریٹری ہمارے، CM صاحب کے ساتھ دورے میں ہیں آج، وہ کل آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ میں 16 یا 17 کو مل کر یہ پرپوزل ان کے سامنے رکھوں گا۔ ہم سب مل کر آنے والے ہمارے پیریڈ میں انشاءاللہ امید ہے مجھے کہ یہ اردو کے لیے جو بھی ہو، ہم تلنگانہ ریاست، کرناٹکا ریاست مل کر آگے بڑھیں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تلنگانہ اردو اکیڈمی کے محترم چیئرمین آنریبل جناب طاہر بن حمدان صاحب، ان کے اسٹاف، ان کے ڈائریکٹر اور ان کے عملے کے ساتھ کرناٹکا اردو اکیڈمی کے چیئرمین، جملہ ارکان اور اسٹاف کی ملاقات رہی۔ آج کی جو ملاقات رہی، یہ ڈائلاگ بہت ہی میننگ فل رہا۔ ان کے منصوبوں کو ہم نے جانا، ہمارے منصوبوں کو انہوں نے اس کی جانکاری لی، اور تال میل کے ساتھ فیوچر میں اردو ادب کے فروغ کے لیے کام کرنے کا ہم نے عہد و پیمان لیا۔ اور میں اس عہد و پیمان کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ نہیں دعویٰ مجھے تنہا نبھائی دوستی، ہم نے محبت کو سنبھالا ہے، کبھی تم نے کبھی ہم نے۔ انشاءاللہ تعالی ہم مل کر کام کریں گے۔
वज़ीर तेलंगाना रेवंत रेड्डी का तेलंगाना वफद के हमरा जनूबी कोरिया का कामयाब दौरा जारी है। इस दौरे के दौरान रेवंत रेड्डी ने रियासत में बैरूनी सरमाकारी को यकीनी बनाने के लिए सनतकारों से मुलाकात की है और उन्हें रियासत में सरमाया मशगूल करने के सिलसिले में तरगीब भी दी है। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर नजर डालेंगे। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सेविल में हाइनोडाई कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि हाइनोडाई का मेगा टेस्ट सेंटर हैदराबाद में क़ायम किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ रेवंत रेड्डी ने टेक्सटाइल सनतकारों के वफद से मुलाकात की थी और उन्हें वरंगल टेक्सटाइल पार्क में सरमाकारी की तरगीब दी थी। इससे पहले वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अमेरिका के दौरे पर थे और वहाँ पर भी उन्होंने सनतकारों से मुलाकात की थी। हल्का मलकपेट में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बदाला की निगरानी में हेल्थ कैंप के इनेकाद का सिलसिला जारी है। मंगल को रुकन असम्बली ने गुड्डी बावली चंचलगुड़े में हेल्थ कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस हेल्थ कैंप से सैकड़ों की तादाद में मुकामी अवाम ने इस्तेफादा किया। डॉक्टर्स ने मुख्तलिफ अमराज के मुआयने किए और दवाएँ भी तकसीम की। इस मौके पर मुतल्लिका कॉरपोरेटर अब्दुल सलाम शाहिद के अलावा डिप्टी DMHO डॉक्टर बजिस्ट निसा के अलावा दीगर मौजूद थे। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के चेक्स की तकसीम जारी है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने मंगल को 28 मुस्तहक दरख्वास्त गुजारों में चेक्स तकसीम किए। मज़कूरा चेक्स की जुमला मालियत 12,85,000 रुपये बताई गई है। इस्तेफादा कुनिंगान का ताल्लुक छावनी, आजमपुरा, खदीम मलकपेट, मूसाराम बाग, सईदाबाद और अकबर बाग डिवीज़न से बताया गया है। इस्तेफादा कुनिंगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया है। तेलंगाना की महकमे इंसदाद रिश्वत सतानी की टीम ने रंगारेड्डी ज़िले के जॉइंट कलेक्टर और सीनियर असिस्टेंट को धरवानी पोर्टल रिश्वत के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक जॉइंट कलेक्टर रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट MV भोपाल रेड्डी और सीनियर असिस्टेंट वाई मदन मोहन रेड्डी को हाई प्रोफाइल रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ACB की इस ऑपरेशन के दौरान मदन मोहन रेड्डी को ग्रामगुड़ा क्रॉस रोड नज़द संजीवनी विनिम के पास मत्यम रेड्डी नामी शख्स से 8 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। बताया ये भी जा रहा है कि रिश्वत 14 घंटे अराजी को ममनुआ फहरिस्त से निकालने के लिए ली जा रही थी। ACB के अहदेदारों ने रिश्वत की रकम मदन मोहन रेड्डी की कार से जब्त कर ली है। जब मदन मोहन रेड्डी से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि जॉइंट कलेक्टर MV भोपाला रेड्डी के कहने पर उन्होंने ये रिश्वत ली है थी और वहीं से उनके फ़ोन पर भोपाल रेड्डी से बात कराई गई और फिर गुज़िश्ता रात 10:41 पर जब भोपाल रेड्डी अपने सरकारी गाड़ी में पिद्दा अंबरपेट आउटर रिंग रोड पहुँचे उस वक्त मदन मोहन रेड्डी ने रिश्वत की रकम उन्हें प्लास्टिक के बैग में हवाले की। ACB वहां पहुंच गई थी और दोनों को पकड़ लिया गया। दोनों अहदेदारों पर अपने ज़ाती मफाद के लिए सरकारी ओहदे के बेजा इस्तेमाल का भी इल्ज़ाम लगाया गया है। विशाखापट्टनम बीच रोड पर डायनो पार्क अम्यूज़मेंट सेंटर में आग लगने का वाक़या पेश आया। कुछ ही देर में डायनो पार्क का बड़ा हिस्सा आग की नज़र हो गया। ताहम अभी तक किसी भी तरह के जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़े पर पहुंच गया और आग पर काबू पाया गया। कुछ ही देर में पार्क में वाक़े रेस्टोरेंट भी खाकस्तर हो गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई है। इस वाक़े से अफरा तफरी देखी गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड के आला हकाम भी मुकाम वाक़े पर पहुंच गए थे। इब्तदाई इत्तलात में शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है।
शहर हैदराबाद और इसके नवाही इलाक़ों में मंगल की सुबह और दोपहर कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हुई है। 7:30 बजे से 8:15 बजे तक बारिश का सिलसिला जारी था, लेकिन इसके बाद रतूबत में इजाफा देखा गया। सिकंदराबाद के इलाक़ों में सुबह के औक़ात में शदीद बारिश हुई, उसके बाद कई मकामात पर ट्रैफिक जैम देखी गई। दोपहर में भी शहर के बाज़ नवाही इलाक़ों से बारिश की इत्तला मिली है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किसानों के लिए शुरू की गई कर्ज माफ़ी स्कीम में कई खामियां पाई जाती हैं और इस सिलसिले में BRS की जानिब से बनाए गए शिकायती कंट्रोल रूम को तकरीबन 75,000 शिकायतें भी मौसूल हुई हैं। BRS ख़ास सुदर्शन रेड्डी ने इस सिलसिले में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और तेलंगाना हुकूमत को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया है। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर सियासी खबरों पर नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि यौम आज़ादी 15 अगस्त को ज़िले खम्बा में मुनक़िदा तक़रीब में किसानों के 2 लाख रुपये तक के खर्चात माफ़ करने के तीसरे मरहले का आगाज़ करते हुए किसानों के अकाउंट्स में 2 लाख रुपये जमा करवाए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि कांग्रेस हुकूमत ने 15 जुलाई को GO जारी करते हुए पहले मरहले के तहत 6,000 करोड़ से ज़ायद की रकम फ़ी किसान 1 लाख रुपये जमा करने के अलावा 30 जुलाई को दूसरे मरहले के तहत फ़ी किसान 1,50,000 रुपये के खर्चात माफ़ करने के इक़दाम किए थे। इन दोनों मरहलों में रियासत के 11 लाख से ज़ायद किसानों के खर्चात माफ़ करने के इक़दाम किए गए। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर के हमरा ज़िले जगतियाल के मेटपल्ली के मंडल में क़ायम गुरुकुल स्कूल में 6वीं जमात के तालिब इल्म अनुरोध की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए उनके वालिदैन से मुलाकात की और स्कूल के तलबा से दरियाफ़्त किया कि क्या उनका हर माह तिबी मुआयना किया जा रहा है या नहीं और स्कूल मैनेजमेंट की जानिब से मियारी ग़िज़ा फ़राहम की जा रही है या नहीं। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने तलबा के सरपरस्तों से बात की, ताहम सरपरस्तों ने उनका घेराव करते हुए मासूम तालिब इल्म की मौत के ज़िम्मेदार हुकूमत और स्कूल मैनेजमेंट को ठहराया है। పారామెడికల్ స్టాఫ్ ఉండాలి, స్నేక్ బైట్ సంబంధించి, ఎందుకంటే అది రోజుల తరబడి ఆగే తీసుకోవాలి, దానికి కావాల్సినటువంటి ఖర్చు ఉంటే అడిగి తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతాను. ఇప్పటికే బహుశా నాకు తెలిసి రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ సంబంధించి 5-6 సార్లు రివ్యూ చేసాం, ఏం చేయాలి, ఎట్లా చేయాలి, ఇంక్లూడింగ్ డాగ్ బైట్కి సంబంధించి కూడా. ఆల్ మెడిసిన్స్ హ్యావ్ టు బి అవైలబుల్ ఇన్ ద స్కూల్. మీరు దానికి సంబంధించి ఒక మెడికల్ రూమ్ లానే పెట్టుకొని అన్ని స్కూల్స్లో మీరు చేయండి. అట్లాగే తల్లిదండ్రులు బిడ్డలు చనిపోయారు, వాళ్ళు బతికి బాగా భవిష్యత్తులో పెద్దవాళ్ళు అయితే వాళ్ళు వాళ్ళ కుటుంబాలని పోషిస్తారని, సమాజానికి ఉపయోగపడతారని ఆశతో కూలీనాలు చేసుకుంటూ కూడా తీసుకొని వచ్చి ఇటువంటి రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో చదివిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ భవిష్యత్తే వాళ్ళ బిడ్డలు. వాళ్ళు లేకపోతే భవిష్యత్తు అంతా అంధకారం, భూమి ఆకాశం కింద లేనట్టు. వాళ్ళ బాధ అర్థం చేసుకున్నటువంటి ప్రభుత్వం నేను చెప్తా ఉన్నాను. తప్పనిసరిగా తల్లి జరిగిన నష్టాన్ని మేము పూర్చలేము, కానీ తప్పనిసరిగా మీ భవిష్యత్తు కోసం తల్లిదండ్రులకు సంబంధించి ఈ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ సొసైటీలోనే ఎక్కడో దగ్గర ఉద్యోగం ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమం కూడా తల్లిదండ్రులు చేస్తామని చెప్పి మాటిస్తున్నాను. అట్లాగే మిగతా పరమైనటువంటి అంశాలు కూడా ఆలోచన చేసి చెప్తానని చెప్పి మీ అందరికీ నేను మాటిస్తూ, ఇక్కడ చదివిస్తున్నటువంటి తల్లిదండ్రులకి
रुकन असम्बली हल्के खैरताबाद डी नागेंद्र ने जोबलीस के नंदी हिल्स के पार्क में इनेदाम का इल्ज़ाम लगाते हुए उनके और दीगर अफराद पर दर्ज किए गए मुकदमे पर तबसरा किया और कहा कि मैं किसी भी मुकदमे के दर्ज करने पर खौफ खाने वाला नहीं हूँ और मुझ पर तेलुगु देशम दौर इख्तिदार में भी कई एक केसेस दर्ज हुए थे। उन्होंने कहा कि हाइड्रा कमिश्नर की जानिब से गैर क़ानूनी अराज़ियात पर से कब्ज़ा बर्खास्त करते हुए इंतज़ामी कार्रवाई करने पर उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए हाइड्रा कमिश्नर रंगनाथ पर इल्ज़ाम आयद किया कि उनका तबादला करने पर वो नाखुश हैं, इसलिए इंतज़ामी कार्रवाई कर रहे हैं। నేను వాళ్ళని ప్రొవోకేట్ చేస్తే తప్పకుండా నా మీద నేను వార్నింగ్ ఇచ్చి వచ్చాను బస్తీ వాళ్ళకి, మీరు పొరపాటున కూడా చేయి పెట్టొద్దు, వాళ్ళకి అధికారం లేదు, మనం చెప్తాము ఎక్కడ చెప్పాలో అక్కడ చెప్తామని చెప్పాను, రైట్ ఫోరంలో చెప్తానని చెప్పాను, ఆపిచ్చి నేనే వచ్చాను, ఇన్స్పెక్టర్ కూడా విట్నెస్ రికార్డ్ కూడా చేశారు వాళ్ళు కూడా, అవన్నీ తెలుసుకోకుండా సోమోటో కింద కేసు పెట్టారు। కాబట్టి ఇది వ్యక్తిగతంగా పోతున్నది ఇష్యూ, కాబట్టి వ్యక్తిగతంగా ఎంత తీసుకున్నా పర్లేదు, ఇలాంటి ఆఫీసర్ చాలా చూశాను నేను, ఇంకా దీని ఎన్ని కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏదున్నా ఎదురిచ్చేవాడిని నేను, గుండె ధైర్యంతో ఎమ్మెల్యే వచ్చినని ఎల్లయ్యగాడు మల్లయ్యగాడు గెలిపిస్తే రాలేదు, ఇట్లా చాలా మందిని చూసినాను। रियासती वज़ीर टी नागेश्वर राव ने मीडिया से बात करते हुए BRS रुकन असम्बली हरीश राव की जानिब से उन पर और ज़िले खम्मम के वज़रा पर वज़ीर आला बनने के दौड़ में रहने के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए बताया कि खम्मम के वज़रा ज़िले खम्मम और रियासत की तरक्की के लिए जो काम कर रहे हैं उससे हरीश राव बौखलाहट का शिकार होकर वज़रा के ख़िलाफ़ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सीताराम आबपाशी प्रोजेक्ट के तामीरी काम कांग्रेस के दौर में पाए तकमील करने के इक़दाम किए जाएंगे। BRS कायद साबिक़ रुकन असम्बली पी सुदर्शन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और कांग्रेस हुकूमत से सवाल किया कि वो तमाम किसानों के लिए 2 लाख रुपए तक के खर्चात माफ़ क्यों नहीं करते, इसकी वजाहत करें। उन्होंने बताया कि पहले मरहले में चंद लाख किसानों के 1 लाख रुपये और दूसरे मरहले में 1,50,000 रुपये के खर्चात माफ़ करते हुए हुकूमत दावा कर रही है कि किसानों के खर्चात की माफ़ी का वादा पूरा किया गया। उन्होंने पूनम प्रभाकर की जानिब से हरीश राव पर की जाने वाली तनकीद पर कहा कि पूनम प्रभाकर निचली सतह की ज़बान का इस्तेमाल करते हुए रोज़ाना ब्रेकिंग न्यूज़ में आना चाहते हैं। ఇంకా చాలా మంది రైతులు 15 ఆగస్టు కోసం చూస్తూ ఉన్నారు। 15 ఆగస్టు తర్వాత ఈ రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి గారి పర్యటన పల్లెల్లో ఉంటుందా డౌటే। క్యాబినెట్లో ఉన్న కొనసాగుతున్న మంత్రులు ఇంత స్వేచ్ఛగా తిరుగుతారా అనేది కూడా డౌటే। అధికార పార్టీ శాసనసభ్యులు పల్లెల్లో ఇప్పటికే లేరు, కానీ రైతుల ప్రొటెస్టు తీవ్రంగా ఉందని చెప్పి పల్లెలను మర్చిపోతారు అనేది కూడా ఇవాళ ఉన్నది। ఎందుకంటే 45,000 కోట్ల రూపాయలు రుణమాఫీకి అవసరం ఉంటే अठहत्तरवीं यौम आज़ादी का जश्न तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तारीख़ी किले गोलकुंडा में मनाया जाएगा। किले गोलकुंडा में किए जा रहे इंतज़ामात का मुआयना करने की गरज से DGP तेलंगाना जितेंद्र IPS गोलकुंडा खिला पहुँचे। उनके हमरा कलेक्टर हैदराबाद और कमिश्नर पुलिस हैदराबाद भी मौजूद थे। उन्होंने तमाम इंतज़ामात को ख़तियत दी और नक़ाइस से पाक इंतज़ामात के आला अहदेदारों को हिदायत दी। वाद रहे कि एक दिन कबल ही चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इन इंतज़ामात का जायज़ा लेते हुए मुख्तलिफ़ हिदायतें भी जारी की थीं। श्रीनगर पुलिस ने अपने रूममेट का कत्ल करने वाले नौजवान को हिरासत में लेते हुए इस केस की यकसुई की। ACP वेंकट रमना ने इस केस के सिलसिले में मीडिया को तफसील बताई है।
श्रीनगर पुलिस स्टेशन में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में एसीपी वेंकटरमना ने कहा है कि 27 साल गणेश जो गुज़िश्ता माह की 24 को श्रीनगर पुलिस स्टेशन के तहत काशी विश्वनाथ स्वामी बॉयज़ हॉस्टल के कमरा नंबर 10 में कत्ल केस में मुलविस था, वो सुबह कुकटपल्ली में गिरफ्तार हुआ। तफसीलात के मुताबिक वो कमरे में देर से आया करता था, उसकी वजह से कमरे में आने के बाद वो 11 बजे के करीब अपने साथियों से झगड़ा भी किया करता था। पिछले महीने की 24 को गणेश ने अपने रूममेट रमना को छुरा घोंप कर कत्ल किया। वो महाराष्ट्र से भागकर वापस आया क्योंकि इसकी आमदनी कम थी। बताया गया है कि गणेश के खिलाफ एल्लूरू पुलिस स्टेशन में भी चोरी का एक मामला दर्ज है। एसीपी ने इस केस के बारे में मज़ीद तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। రాత్రి సుమారు 11 గంటల సమయంలో ఎస్ఆర్ నగర్లోని కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామి బాయ్స్ హాస్టల్లో ఒక మర్డర్ జరిగింది. రూమ్ నంబర్ 10లో ఉండే గణేష్ అనే వ్యక్తి ఈ ముద్దాయి. 27 ఇయర్స్, బార్బర్ బై ప్రొఫెషన్, కింద రవి బార్బర్ హెయిర్ సెలూన్ షాప్లో పనిచేస్తాడు. అదే బార్బర్ షాప్ పైన ఉన్న హాస్టల్లో సెకండ్ ఫ్లోర్లో ఉంటున్నాడు. రాత్రి సుమారు 11 గంటలకు ఇతను తాగి రూమ్కు వెళ్ళి ఆ రూమ్మేట్స్ను గొడవ పెట్టుకొని అందులో ఉండే వీళ్ళ రూమ్మేట్ అయిన వెంకటరమణ 38 ఇయర్స్, అతను రవీంద్ర భారతి స్కూల్లో టీచర్గా పనిచేస్తున్నారు. రాత్రి 11 గంటల ప్రాంతంలో ఆయనతోని గొడవపడి ఒక చాకు తీసుకొని ఆయన్ను గొంతు పైన మరియు బాడీ పైన విచక్షణారహితంగా దాడి చేయడంతో అతను స్పాట్లోనే కింద పడిపోయాడు. जहन मुंतशिर करते हुए सरखा करने वाली और पाकेट मारने वाली 5 रुकनी बैन रियासती ख़वातीन की टोली का पर्दाफाश करते हुए सुल्तान बाजार क्राइम टीम ने उनके कब्ज़े से नकद रकम और सरखा शुदा साड़ियाँ और बैंगल्स बरामद की हैं। डीसीपी ईस्ट जोन के मुताबिक सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। ఇమిటేటింగ్ ఉంది, రోల్డ్ గోల్డ్ టైప్. ఈ గోల్డ్ కోటెడ్ ఈ బ్యాంగిల్స్ కూడా వాళ్ళకి చూపించేసి ఇట్లాంటివి చూపించి ఇవి అక్కడ పెట్టేసి ఒరిజినల్ని కొట్టేయడం కూడా వీళ్ళ వృత్తి. బట్ ఇట్లాంటి అఫెన్స్ మనకి ఎక్కడ కూడా రిపోర్ట్ కాలేదు. సో ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళతోటి సర్చ్ చేసినప్పుడు ఈ గోల్డ్ కోటెడ్ ఆర్నమెంట్స్ కూడా గోల్డ్ అయితే ఏం రికవర్ కాలేదు. ఈ ఇమిటేటింగ్ గోల్డ్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా వాళ్ళ నుంచి రికవర్. ఈ వీళ్ళు యాక్చువల్గా మధ్యప్రదేశ్ రాజ్గర్ డిస్టిక్కి చెందిన వాళ్ళు. సో వీళ్ళు వారం రోజుల కిందనే వచ్చారు. అక్కడ కూడా మేము కనుక్కున్నాము, బట్ అక్కడ కూడా లోకల్ పోలీస్కి కాంటాక్ట్ చేస్తే వీళ్ళు వాళ్ళ ఉన్న ఏరియాలో అఫెన్స్ చేయడం లేదు, అంటే కొత్త ప్లేస్లకు వెళ్ళేసి అఫెన్స్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో వీళ్ళు మొత్తం అంటే ఈ సంబంధించిన వాళ్ళందరూ కూడా ఒక గ్యాంగ్గా, అంటే వీళ్ళంతా కూడా దాదాపుగా వాళ్ళ ఊర్లో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ కూడా ఇట్లాంటి మోటివ్ అనేది ఉంటుంది. సో వాళ్ళు ఏంటంటే లోకల్లో అయితే అఫెన్స్ చేయలేదు, బట్ వేరే స్టేట్లలో ఎక్కడన్నా చేసింది మనకైతే అది అయితే రాలేదు. ఇదే ఫస్ట్ టైం అయితే మన దగ్గరనే ఒక అఫెన్స్ అయింది. ఇమీడియట్గా మనం పట్టుకోవడం వల్ల నెక్స్ట్ అఫెన్స్ కాకుండా. నో ఆటో డ్రైవర్ అంటే వాళ్ళు జనరల్గా డైలీ లేబర్ లాగానే నడుపుతుంటారు. సో వీళ్ళు కొత్త టైప్లో అంటే డైలీ 2000 ఇస్తాము, మేము షాపింగ్ చేస్తాము. సో మళ్ళీ మేము షాపింగ్ చేసిన తర్వాత తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడనే వదిలేస్తే చాలా అనే వరకు జస్ట్ షాపింగ్ అంటే పెద్ద డిస్టెన్స్ కూడా తిరగడం అవసరం లేదని ఉద్దేశంతో అతను వెళ్ళాడు. అతను ఆటో డ్రైవర్ అంతే, ఏం సంబంధం లేదు, ఎందుకంటే అతను లోకల్ పర్సన్. जिले रंगारेड्डी के जॉइंट कलेक्टर को रिश्वत की रकम हासिल करते हुए रंगे हाथों हिरासत में लिया गया है। एसीबी राय के मुताबिक जॉइंट कलेक्टर रंगारेड्डी जिला मोहन रेड्डी को शिकायत कुनंदे से 8 लाख रुपए रिश्वत की रकम हासिल करते हुए हिरासत में लिया गया। बाद उन्हें एसीबी कोर्ट में पेश किया गया।
कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली की जानिब से मुताल्लिका हलकों में आवाम में हुकूमती स्कीमात की मंजूरी करवाते हुए उन्हें चेक्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में हल्का असम्बली बहादुरपुरा के रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से मंजूरा 19 चेक्स की इस्तेफादा कुनंदगान में तकसीम अमल में लाई। मज़कूरा 19 चेक्स की मालियत 11,45,000 रुपये बताई गई है। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने दरगाह हज़रत शाहराज ख़त्ताल रहमतुल्लाह अलैह की उर्स तक़ारीब के सिलसिले में किए जाने वाले इंतज़ामात का हुकूमती अहदेदारों के हमरा जायज़ा लिया। उनके हमरा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स मोहम्मद सलीम, मोहम्मद खादर और दीगर भी मौजूद थे, जिन्होंने इंतज़ामात का मुआयना किया। उन्होंने GHMC, वाटर वर्क, सेवरेज बोर्ड और महकमे बरक़ी के अहदेदारों को हिदायत दी कि उर्स तक़ारीब के सिलसिले में मौसर इंतज़ामात किए जाएँ ताकि ज़ायरीन को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ न हो सके। आखिर में देखेंगे सुर्खियाँ एक बार फिर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का जनूबी कोरिया का कामयाब दौरा जारी, बैरूनी सरमायाकारी को यकीनी बनाने सनतकारों से की गई मुलाकात। किसानों की कर्ज मुआफ़ी स्कीम में कई खामियां, BRS कंट्रोल रूम को 75,000 शिकायतें मौसूल, P सुदर्शन रेड्डी ने किया दावा। कांग्रेस रुकन असम्बली डी नागेंद्र पर पार्क के इन्हदाम का इल्ज़ाम, हाइड्रा की जानिब से केस दर्ज, मुकदमे से घबराने वाला नहीं हूँ, डी नागेंद्र का बयान। मजलिसी अरकान असम्बली मुताल्लिका हल्कों में अवामी फलाह व बहबूद के कामों में मसरूफ़। विशाखापट्टनम बेसिज पार्क इम्पोर्टमेंट सेंटर में आतिशबाजी का हादसा, लाखों रुपये नुकसान का तखमीना, मुतल्लिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। जॉइंट कलेक्टर रंगारेड्डी 8 लाख रुपए रिश्वत हासिल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार, ACB ने की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं अख्ताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।